Hello students, welcome in your science class. So kids, in today's science class, we will see very interesting chapter of your book. Great. So the topic that we are going to see in today's class, my dear student, is about sense organs. Sense organs क्या होते हैं बच्चों? वो हम जानेंगे. तो आप सब ready हो? Great. Let's start. Very good. So, my dear students, as you can see, the chapter name. Can you tell me the chapter name? Very good. That is sense organs. Okay, let's start. Okay, there are some specific organs which tell us about the things happening in our surrounding. हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो हमें बताते हैं हमारी सराउंडिंग के बारे में. The organ that help us to know the outside worlds are called sense organs. जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड को और जिसकी हेल्प से हमारे आसपास की सराउंडिंग या आउटसाइड वर्ल्ड को हम समझ पाते हैं, वो होते हैं बच्चों हमारे सेंस ऑर्गन. चलिए, कौन कौन से हैं? कैन यू नेम इट? द फर्स्ट वन इज आईज. नोज, ईयर, स्किन एंड टंग are the five sense organ. So my dear students, we have five sense organ and the name of these organs are eyes, nose, ear, skin and tongue. तो आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं how many sense organ we have? Yes, very good. We have five sense organ. Good. Okay. And can you tell me the names of these sense organs? Very good. Yes. Eyes, ear, nose, tongue and skin. Great. So आप सभी बच्चों ने इन दो क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं. Let's move ahead. Okay. The sense of touch हम देखते हैं सबसे पहले. अब आप खुद सोचिए, हमारे पास ये फाइव सेंस ऑर्गन्स है एंड कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है हमें टच करने में? ग्रेट, दैट इज योर स्किन. वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे और अगर हम बात करेंगे कि हम चीजों को फील टच कब कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर स्किन. सो स्किन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस स्टूडेंट्स, great. Without feeling, we cannot be aware about the texture of thing. वो चीज का टेक्सचर क्या है हम समझ नहीं पाते. To feel things we need to touch them. Of course, जब तक हम चीजों को टच नहीं कर लेते हम फील नहीं कर पाते. The sense organ used to feel things is the skin. हम स्किन की हेल्प से फील कर पाते. There are many nerves in our body. हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती है. ओके, सो दीज नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द स्किन टू द ब्रेन. सो बच्चों, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि हमारे सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट हमारी स्किन कहां तक जाता है? हमारे सिग्नल, यस, इट गोज टू अवर ब्रेन. ठीक है. So every time we touch a particular thing, the signal is sent from the skin to the brain by nerves. This information is processed by the brain and it tells what we are touching. Definitely yes. Then आप किसी चीज को टच करते हो, आपको कैसे पता चलता है वो कैसा है? आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कि ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत हार्ड है. Okay, so that's why. So brain play a very important role. Great. So our sense of touch let us know whether an object is cold or hot. So समझ रहे हो? Sense of touch की हेल्प से ही पता चलेगा ना बच्चों? Yes or no? Definitely yes. That means something is hot or cold. जैसे कभी कभी हमारा चाय हमने पकड़ी है ना, कप लिया और वो बहुत गर्म हुआ,
कैसे पता लगता है? तब हम हाथ एकदम पीछे कर लेते हैं, स्किन ही हमें बताती है. ग्रेट. सो रफ और स्मूथ, सॉफ्ट और हार्ड, एंड ड्राई और वेट. सो स्किन हेल्प अस टू डू all these things. Great. We should not touch all the things that we see in our surrounding. Great. ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजों को टच कर सकते हैं. No. Okay. Some can be hot and our skin may burn, or some can injure or hurt us. Below given things should not be touched by us as they might prove to be hazardous for us. That means कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम टच नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मे बी वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. जस्ट लाइक हॉट यूटेंसिल, सीजर्स, नाइफ एंड कैक्टस. यस, इनको हमें टच, बताओ, कैन यू टच दीज थिंग्स? यस और नो? Definitely no. Okay. Now the next topic. अब आपको सेंस ऑर्गन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया? Yes. Wonderful. Now my dear students, let's see good touch and bad touch क्या होता है. ठीक है, हमारे टू टचेस है वो क्या होते हैं? All of us like to be touched by our parents or close relatives. Such a touch by which we feel love is known as good touch. जैसे जो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या क्लोज रिलेटिव हमें टच करते हैं एंड वो हमें कंफर्टेबल लगते हैं, दैट मीन्स वो गुड टच है. Sometimes we do not feel good when we are touched by any stranger. Okay? जब कोई स्ट्रेंजर टच करते हैं then we do not feel good. Whenever we feel uncomfortable by the touch of anyone, we should immediately stop them from doing so and inform our parents and teachers about that. So that touch is bad touch if you are not feeling comfortable or good. So बच्चों, आपने किसको बताना है? Good. That is your parents. Okay? So आपको पेरेंट्स को यहाँ पे बताना है. So आप मुझे बता सकते हैं how many touches are there? 2. Very good. Can you name it? Yes. Very good. Good touch and bad touch. Very good. Next, this is an activity. So are you ready for this activity? Great. Let's see. Match sense organs or match sense organs known with their function. So यहाँ पे आपके सेंस ऑर्गन्स है और आपने मैच करना है. चलिए बच्चों, साथ में ट्राई करते हैं और साथ में आप मुझे आंसर भी बताएंगे. चलिए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? द वाटर इज कोल्ड. आप कौन से सेंस ऑर्गन की हेल्प से पता कर पाओगे कि वाटर ठंडा है? यस, कैन यू सी? कहाँ है हमारी? दैट इज योर स्किन. सो स्किन कहाँ है? ये रही, हमारे हाथों से टच करके फील करोगे. Yes? Next, second one. The music is loud. Music बहुत loud है. Yes, your ear. So हमारे ear help करेंगे. Third one. The coffee is sweet. Coffee बहुत मीठी है. Definitely tongue. Yes, very good. So हमारे tongue help करेंगे. The flower is fragrance is good. Flower की fragrance बहुत अच्छी आ रही है. खुशबू हम कैसे सुन पाते हैं? With the help of your nose. Next is the lotus is pink. Of course, we can see with the help of your eyes. कि ये फूल पिंक कलर का है. So यहाँ आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स फिनिश हो गए. Yes? Great. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ स्मेल. हम चीजों को स्मेल कैसे करते हैं? किसकी हेल्प से करते हैं? क्या आप मुझे आंसर बताएंगे? Which sense organ helps you to smell? Very good. That is nose. Good. We smell everything using our nose. हमारी nose की help से हम smell कर पाते हैं. Nose has some special cells which are called receptors. हम उसमें कहते हैं जो smell करने में हमें help करते हैं. हम समझ पाते हैं good smell है कि ये bad smell है. ठीक है? Whenever we smell something, the receptors carry a signals to the brain, which in turn let us know what the smell is all about.
In this way, the nose helps us in smelling the fragrance of flowers, the mouth-watering aroma of freshly baked cakes, and the unpleasant odor of rotten vegetables and dirty shoes. यहाँ पे जो भी स्मेल आपको आप समझ पा रहे हैं, इनमें से कुछ स्मेल्स गुड है एंड कुछ बैड है. बट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारी नोज की हेल्प से. ग्रेट. नाउ दिस इज एक्टिविटी टाइम. ऑब्जर्व ईच पिक्चर, सर्कल द थिंग्स दैट यू कैन टच. कौन कौन सी चीजों को हम टच कर पाते हैं? फर्स्ट पिक्चर को टच कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे. सो यू कैन सर्कल इट. ओके. दिस सन को? नो. नेक्स्ट टेडी बियर को टच कर पाते हो? यस. नेक्स्ट. यस. यस और नो कर पाते हो ना टॉर्टोराइज को? ग्रेट. मून को डेफिनेटली यू डोंट टच इट. क्लाउड्स को भी नहीं टच कर पाते. सो हम कुछ चीजों को टच कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते. ग्रेट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंटली एबल और स्पेशल पीपल. बेटा आप लोगों ने ऐसे पीपल्स देखे होंगे जो बहुत स्पेशल है. ग्रेट. अब ये कौन से लोग होते हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में. Certain people cannot hear while some cannot see or speak. कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते. So they are called, can you name it? They are called special children. Very good. Great. Such people are called differently able or special people. हम इनको कहेंगे. People who do not have particular sense organ, their other organ become highly developed. So ये special children होते हैं. इनको हम special children इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भले ये एक चीज में ये सुन ना सके या देख ना सके, बट किसी दूसरी चीज में बहुत अच्छे होते हैं. ग्रेट. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इंडिविजुअल आपने देखे होंगे कि ऐसे लोग मे बी जिनको देखने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है, ब्लाइंड होते हैं, बट दे आर, उनमें कुछ ना कुछ बेस्ट क्वालिटी जरूर होती है. ग्रेट. इसलिए हम इनको कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस. सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. क्या आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी? ग्रेट. होप सो. दिस क्लास इज वेरी यूजफुल टू यू. Great. So we will meet again, my dear students. So with you all, take a good care of you and have a good day, my dear students. Let's meet again. Till then, bye-bye.